Hello guys, welcome you all in our next topic of matrices. Yesterday we have seen the addition and multiplication of matrices. There are some properties of addition and multiplication also, like commutativity, associativity in addition, as well as in multiplication. One important property is there which is very useful to us in this chapter. So we have seen a plus b is equals to b plus a in 11th standard. Okay, 11th में हमने देखा था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव एज वेल एज मैट्रिक्स एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव एज वेल एज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव. That is already we have seen where A, B and C are the matrices of the same order. Okay, this kind of properties we have seen, but in multiplication of matrices is not commutative. Very important one, very important. Though addition of matrices is commutative, इसका तो सीक्वेंस चेंज कर देंगे तो फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वैसे भी हम एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं. ठीक है, एलिमेंट्स ऐड करते समय हम उसका सीक्वेंस चेंज भी कर ले तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है. इसीलिए एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव, नो डाउट. बट इन मल्टीप्लिकेशन a into b is not equals to b into a. Depending on this property we have to study the total chapter here. Depending on this only one condition, ab is not equals to ba means matrix multiplication is not commutative. But if it is commutative, that comes directly I. That comes directly I means a into b also I and b into a is also I. I means identity matrix or unit matrix of order same as that of A and B. A and B are the two square matrices. A and B are the two square matrices only. Remember, only two square matrices. A into B is not equals to B into, that is our property. Multiplication of matrices is not commutative in all the cases. In all the cases, may possible in some cases that may be commutative, but that directly comes to unit matrix of the same order as that of A and B. So in this property, then A inverse is equals to B and B inverse is equals to A, means A and B are called as inverse matrices of each other, and that inverse we have to study in this chapter. So total chapter is based on this property. So remember, addition of matrices is commutative, it is associative, but in multiplication of matrices is not commutative. If that is commutative, that comes to I, and then those two matrices whose product we have taken, that are inverses of each other, and this inverse we have to find out in this chapter using some methods are there. Actually there are three methods to find out the inverse of a square matrix. Three methods. In these three methods, first one is elementary row transformations, second one is elementary column transformations, and third one is inverse of a square matrix by adjoint method. But for finding out inverse by elementary transformations, first of all we have to revise the elementary transformations which we have studied in determinants also. In the 11th standard we have already studied the elementary transformations. Let's take a fast revision of that elementary transformations what we have studied in 11th mathematics. So let's see. First elementary transformation we have studied there, that is elementary transformations. First transformation, interchange of any two rows or we can say columns, means हमने सेपरेट नहीं लिखा है, एक ही प्रॉपर्टी में हम रो का भी और कॉलम का भी देखते चलेंगे. वी कैन इंटरचेंज एनी टू रोज और columns of a matrix. देखिए, of a matrix, it is represented as देखिए Ri interchanges with J or Ri
interchanges with Rj or we can say Rij. देखिए हम एक आधा मैट्रिक्स अगर हमें दिया हो, वन स्क्वायर मैट्रिक्स इज गिवन टू अस, तो वो मैट्रिक्स के कुछ कोई भी दो रोज, कौन से भी दो रो हम एक दूसरे की जगह पे इंटरचेंज कर सकते हैं। इसकी जरूरत क्या है, क्यों इंटरचेंज करेंगे भाई, क्या जरूरत है उसको इंटरचेंज करने की। लेकिन जब इन्वर्स फाइंड करने की बात आएंगी तब हमें वो मैट्रिक्स को टू कन्वर्ट दैट मैट्रिक्स इनटू एन यूनिट मैट्रिक्स क्या करना पड़ता है, हमें मैट्रिक्स को using any kind of transformations, row transformations or we can say column transformations, we have to convert that matrix into an unit matrix. For that purpose of converting the matrix into unit matrix, we have to apply the elementary row or elementary column transformations. So while applying the elementary transformations, first application we can say interchange of any two rows or any two columns. We can interchange for our purpose of simplification, okay, for converting that matrix into an unit matrix or identity matrix, we can say we can interchange any two rows of a matrix on their respective positions. एक दूसरे की जगह पे हम बदल सकते हैं उसको, कोई भी दो रोज उठाएंगे एक दूसरे की जगह पे हम उसको पूरे रोज, हाँ एक बात याद रखनी है, पूरा का पूरा रो पे उसका इफेक्ट होगा, कोई अकेले एलिमेंट पे नहीं होगा, पूरा रो इंटरचेंज करना है। हम एक एग्जांपल भी देखेंगे उसमें। फॉर कॉलम्स अगर हम देखेंगे, और फॉर कॉलम सी आई इंटरचेंजेस विथ जे और सी आई मीन्स कॉलम नंबर आई नंबर का कॉलम और जे नंबर का कॉलम और सी आई जे। देखिए आई नंबर का रो और जे नंबर का रो एक दूसरे की जगह पे इंटरचेंज करना है, या तो फिर फॉर कॉलम्स आई नंबर का कॉलम और जे नंबर का कॉलम। लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑफ दिस, correspondingly we will taking examples. Example, for example A is the matrix 1 minus 2 1 minus 1 2 0 3 4 4 1 minus 3. Okay, suppose we perform the elementary transformation, perform R1 interchanges to R3. क्या करेंगे हम उसको, फर्स्ट और थर्ड रो एक दूसरे की रो बात कर रहे हैं हम लोग, हम बात क्या कर रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड रो, पूरा का पूरा रो, एक एलिमेंट के लिए बात नहीं कर रहे हम एक एलिमेंट के नहीं बात कर रहे, हम पूरा रो के लिए बात कर रहे हैं, याद रखना है। सो कैसे इंटरचेंज, अभी यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है लेकिन ये इक्वल नहीं आएगा, जस्ट वी हैव टू राइट दिस सिंबल एंड हाउ वी इंटरचेंज द टू रोज, R1 इंटरचेंजेस टू R3 मीन्स एक नंबर का जो रो है वो थर्ड रो की जगह पे जाएगा, थर्ड रो जो है वो एक नंबर की जगह पे आएगा। सो 4 1 minus 3 0 3 4 1 minus 1, that is the new converted matrix by applying this elementary transformation. Okay, अब सपोज हम क्या करेंगे, इसी मैट्रिक्स को कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए 1 minus 1 2 0 3 4 4 1 minus 3। अभी सपोज हम परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म C2 इंटरचेंजेस विथ C3, C2 इंटरचेंजेस विथ C3। सो कैसे आएगा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, C2 मीन्स कॉलम नंबर 2, C3 मीन्स कॉलम नंबर 3, दोनों एक दूसरे की जगह पे आ जाएंगे। सो 1 0 4 दैट फर्स्ट कॉलम विल बी एज इट इज, देयर इज नो एनी करस्पॉन्डेंस ऑफ फर्स्ट कॉलम इन दिस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें कुछ संबंध नहीं है C1 का, सो वो एज इट इज रहेगा। C2 इंटरचेंजेस टू C3, सो इट इज 2 4 minus 3 minus 1 3 1। क्या किया हमने यहाँ पे, हमने सेकेंड और थर्ड कॉलम एक दूसरे की जगह पे इंटरचेंज करके लिख दिया। ठीक है, दिस इज द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो स्केलर। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, एक रो के सभी एलिमेंट्स को कुछ नॉन जीरो स्केलर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए वी कैन मल्टीप्लाई
we can multiply elements of any row or any column by a non-zero scalar इस ट्रांसफॉर्मेशंस को कैसा रिप्रेजेंट करेंगे, k इंटू आर आई और आर आई चेंजेस टू k इंटू आर आई। देखिए रिप्रेजेंट कैसा करना है, i नंबर के रो के सभी एलिमेंट्स को k कांस्टेंट से, ये कांस्टेंट ये नंबर है, k इज एनी स्केलर, सो इस स्केलर से ith रो के सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। और वी कैन से आर आई, दिस i नंबरथ रो changes like k into ri. Okay, for column transformations we can say k into cj or cj changes to k into cj, j नंबर के कॉलम को हमने k से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगेन वी सी सम एग्जांपल। फॉर एग्जांपल सपोज A is the matrix 3 3 4 1 minus 1 2 minus 2 3 1. Okay, this is some random matrix we have taken. We are studying the transformation multiplication of elements of any row. इस मैट्रिक्स के किसी एक रो को कुछ कॉन्स्टेंट्स से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो फिर डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डिवाइड भी हो जाएगा। सो याद रखना है हमें, मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन भी आ गया। ठीक है, अभी 1/2 से मल्टीप्लाई करना मतलब ही होता है 2 से डिवाइड करना। इस तरीके से हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो फिर डिवाइड भी कर सकते हैं, इतना याद रखना है हमें। पिछले ट्रांसफॉर्मेशन में हमने देखा था 2 रोज हम इंटरचेंज कर सकते हैं या तो फिर 2 कॉलम्स इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं किसी एक रो को हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। अभी मल्टीप्लिकेशन का मेंशन किया है, डिवीजन मेंशन नहीं किया है, लेकिन फिर भी याद रखना है अगर डिवीजन करने की जरूरत आती है, अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो बोल सकते हैं कि 1/2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सो 1/2 से मल्टीप्लाई करना हो मतलब 2 से डिवाइड करना है, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। सो दो वी हैव रिप्रेजेंटेड मल्टीप्लिकेशन हियर, इसमें डिवीजन भी आ गया। ठीक है, सो अभी ये रो दिया हुआ है, आप ये मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको 3 3 4 1 minus 1 2 minus 2 3 1. Let's multiply. Suppose R2 changes to suppose minus 4 into R2. What we have represented? We are multiplying R2 by minus 4. क्या कर रहे हैं हम, R2 को minus 4 से मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं। So A will be the matrix. So change will be only in, किस में चेंज होगा? ओनली R2 रो नंबर सेकेंड चेंज होगा, रो नंबर 1 और रो नंबर 3 में कुछ चेंज नहीं होगा, उसका कुछ संबंध भी नहीं है इसमें। सो 3 3 4 R2 इंटू माइनस 4। अभी इसमें याद रखना है पूरे के पूरे रो को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब उस रो में जितने भी एलिमेंट्स है सभी को हम -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो -4 इंटू R2, 1 इंटू -4 इज -4, -1 इंटू -4 इज 4, 2 into -4 is -8, -2 3 1 will be as it is. So we have transformed this matrix to this row to -4 into R2. Suppose for the column, we can say for column A is the matrix given to you, we take the same matrix again 3 3 4 1 -1 2 -2 3 4, sorry -2 3 1. Same matrix we have carried forward there. So suppose C3 changes to, what we do, we multiply -3/2 into C3. क्या करना है हमने -3/2 से कॉलम नंबर 3 को मल्टीप्लाई करना है। कॉलम नंबर 3 को -3/2, दिस इज द स्केलर, सी इट विल बी एनी रियल नंबर, दैट के बी एनी रियल नंबर, that may be rational, that may be we can say that may be real, that may be rational, that may be natural, that may be whole number, integer, it may be possible, that may be a fractional number, no problem. So -3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम नंबर 3 को, so A will be equivalent with, yes, column number 3 is going to change, so column number 1 and column number 2 will be as it is, -3/2 into C3, 4 into -3/2, so देखिए 4 into -3/2,
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 into -3 इट इज -6। रिमेंबर जहां पे हम डिवीजन कर सकते हैं वहां पे डिवीजन कर देने का है, ठीक है। सो -4 को -3/2 से हमने 4 को हमने -3/2 से मल्टीप्लाई करना है। सो -3/2 इंटू C3 का फर्स्ट एलिमेंट है 4, सो 4 इंटू -3/2 दैट कम्स -6। 2 इंटू -3/2, 2 into -3/2, 2 will get cancelled here, -3 will be there. So 1 into -3/2, -3/2. That is the matrix A. What we have done? We have just multiplied column number 3 by -3/2, that is the scalar one. So वो change हो गया like this, ठीक है। So this is the second elementary transformation, multiplication of elements of any row by a non-zero scalar. Okay. थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ेंगे, एडिंग द स्केलर मल्टीपल ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो। एक रो के सभी एलिमेंट्स को स्केलर मल्टीप्लाई करके, अभी स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने जस्ट देखा है, क्या है, एक रो में सभी एलिमेंट्स को स्केलर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स को भी हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसको मल्टीप्लाई करने के बाद वो किसी अदर रो में या तो फिर किसी अदर कॉलम में हम ऐड कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एडिशन आ गया तो सब्सट्रैक्शन भी आ गया, याद रखना है। जैसे मल्टीप्लिकेशन हो गया तो डिवीजन भी आ जाता है उसमें, उसी तरीके से एडिशन आ गया तो उसमें सब्सट्रैक्शन भी आ गया, ठीक है, याद रखना है। सो किसी एक रो को या तो फिर किसी एक कॉलम को पर्टिकुलर स्केलर से मल्टीप्लाई करके जो स्केलर मल्टीपल हमें मिलेगा उसको हम किसी अदर रो में या तो फिर किसी अदर कॉलम में रिस्पेक्टिवली ऐड कर सकते हैं। देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लिखेंगे। सो इट इज रिप्रेजेंटेड एज, सपोज Ri इंटरचेंजेस टू Ri प्लस K इंटू Rj। देखिए J नंबर के रो को हमने कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई किया और उसको ith रो में ऐड कर दिया, ठीक है। और वी कैन से Ri प्लस और माइनस, हाँ ओके, एडिशन और सब्सट्रैक्शन वी कैन टेक K इंटू Rj। For column if we represent Ci changes to Ci plus K into Cj और yes Ci plus K into Cj, इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। याद रखना है पहले क्या करना है, पर्टिकुलर रो के सभी एलिमेंट्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करना है या तो फिर पर्टिकुलर कॉलम के सभी एलिमेंट्स को स्केलर मल्टीप्लाई करना है। वो मल्टीप्लिकेशन आने के बाद वो अलग दूसरे रो के सभी एलिमेंट्स में, करस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट्स में उसको ऐड करना है या तो फिर करस्पॉन्डिंग कॉलम के सभी एलिमेंट्स में उसको ऐड करना है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स हियर आल्सो। इसका भी कोई एग्जांपल हम देखेंगे। चलिए भाई, suppose for example, suppose A is the matrix 1 2 3 4, may possible that may be of 3 by 3 or we take 3 by 3 matrix, no problem, okay, 3 by 3 matrix, let us take there. Suppose 2 minus 1 2 3 0 5 4 3 2 or 4 3 minus 2 we can take here, okay. So let's perform the transformation. Perform. Suppose R2 changes to R2 plus 3 into R1. क्या करेंगे, R1 के सभी एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई, एक्चुअली मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, ठीक है ना, हमारा मैट्रिक्स तो वही रहेगा, मैट्रिक्स चेंज नहीं करने वाले हम लोग, लेकिन इस मैट्रिक्स के रो नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके उसको रो नंबर 2 में ऐड करना है, R2 plus 3 into R1। ओके, चलिए हम 1 by 1 देखते कैसा आता है मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हमारे। चेंज कौन सा रो होने वाला है, चेंज विल बी ऑकर इन R2 ओनली, ठीक है ना, हमने R2 चेंज करना है। सो R2 चेंज करना है, इसका मतलब R1 विल बी एज इट इज -2 minus 1 2, दैट R1 विल बी एज इट इज। नाउ थिंक अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन, R2 plus 3 into R1। अभी R2 का फर्स्ट एलिमेंट इज 3, R2 का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है 3, R2 मीन्स रो नंबर 2, ओके, R2 मीन्स रो नंबर 2, रो नंबर 2 का फर्स्ट एलिमेंट है 3 प्लस 3 इंटू इस 3 के लिए R1 का एलिमेंट कौन सा है 2 है, 3 इंटू 2 इज 6, 3 प्लस 6 इज 9, सो हियर कम्स द एलिमेंट 9।
ठीक है। अभी देखिए R2 का नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, R2 प्लस 3 इंटू R1, दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ R2 एंड R1। सो R2 का फर्स्ट एलिमेंट हमने फाइंड कर लिया, वो 9 आ गया। सेकेंड एलिमेंट कौन सा है R2 का, वो है 0 प्लस 3 इंटू दिस 0, फॉर दिस 0 व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर R1, R1 का कौन सा एलिमेंट आएगा 0 के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -1, सो 0 minus 3 that is -3, so here comes -3. Okay, next element of R2 will be 5 plus R2 plus 3 into R1, 5 plus 3 into what is the corresponding element for this 5 is in R1, that is 2, so 5 plus 6 that is equals to 11, so here comes 11. So R2 is changed, now R3 will be again as it is, so 4 3 minus 2, that is the transformation what we have applied here. Okay, if we think about column transformation again, so no need to write this rough calculation there, this is for your understanding only. Okay, let's think about the column transformation. Okay, so see here, A is the matrix given to you, we can take the same matrix again. What is matrix A? It is 2 minus 1 2 3 0 5 4 3 minus 2. We have seen we can take addition as well as we can take the subtraction here. Let's take for subtraction here, we have seen already the addition. Okay, similar rules are applied there. So perform the transformation, perform, suppose we take C3 changes to, किस में चेंज करेंगे हम, कॉलम नंबर 3 में चेंज करेंगे। चलिए C3 चेंजेस टू -2 इंटू C2। ओके, क्या करेंगे, C3 चेंजेस टू C3 प्लस -3 इंटू C2। C3 को हमने क्या किया, चेंज किया है, कैसा, C3 प्लस -3 इंटू C2, मतलब कॉलम नंबर 2 के सभी एलिमेंट्स को -3 से मल्टीप्लाई करना है और उसको कॉलम नंबर 3 में ऐड कर देना है। ठीक है, दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉलम नंबर 3. ओके, सो लेट्स सी द मैट्रिक्स हाउ इट कम्स. A is the matrix equivalent with, now change will occur only in, जो पहले लिखा है उसमें चेंज होने वाला है, ये तो तय है, जो ट्रांसफॉर्मेशन में शुरू में लिखा है उसमें चेंज होना है, चेंज दूसरे किसी कॉलम में नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मेशन में जो फर्स्ट लिखा है उसी में चेंज होने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई। सो कॉलम नंबर 1 विल बी एज इट इज 2 3 4, कॉलम नंबर 2 इज अगेन एज इट इज -1 0 3। अभी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहता है C3 प्लस -3 इंटू C2, C3 प्लस -3 इंटू C2, C3 का फर्स्ट एलिमेंट है, C3 का फर्स्ट एलिमेंट 2, देखिए C3 का फर्स्ट एलिमेंट 2 प्लस -3 इंटू C2 का एलिमेंट कौन सा है, -1 है, सो 2 प्लस 3, -3 इंटू -1 इज +3, 2 प्लस 3 इज 5, सो इट कम्स 5, इट कम्स 5। सो समझ में आ रहा है क्या किया हमने, C3 का फर्स्ट एलिमेंट था 2 प्लस -3 इंटू C2 का, इस 2 के लिए C2 का एलिमेंट है -1, उस पर डाल दिया, ये फार्मूला है, ये सभी एलिमेंट्स को अप्लाई करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, C3 मींस C3 का नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है 5, C3 मींस कॉलम नंबर 3। ओके, 5 प्लस -3 इंटू व्हाट इज एलिमेंट फॉर C2, दैट इज 0, 5 plus -3 into 0, it is 5 plus 0, it is 5, so again it is 5. Next element of C3 will be, it is -2 plus, देखिए C3 का नेक्स्ट एलिमेंट है -2 प्लस -3 इंटू C2 का एलिमेंट कौन सा है 3, it is -2 -3 into 3 is -9, it is -11, so it is the -11. So that is the last column transformation which we have to see. So these kind of elementary transformations are there which we have to apply while solving the matrix to an identity matrix. देखिए आप अपना नोटबुक्स में रिकॉर्ड भी बना सकते हैं इसका, ठीक है, all the 3 transformations we have already studied there. Okay, write down.
सो हमने एक्चुअली क्या पढ़ा, एक छोटा सा रिवीजन उसका देखेंगे। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस हमने पढ़े हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस जो कि हम पढ़ चुके हैं सभी, ठीक है। 3 टाइप्स के ट्रांसफॉर्मेशंस हमने देखे हैं, उसमें 2 पार्ट्स आएंगे, ठीक है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस में 2 पार्ट्स आएंगे। फर्स्ट आर रो ट्रांसफॉर्मेशंस, रो ट्रांसफॉर्मेशंस, एंड सेकेंड आर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। 2 टाइप्स के ट्रांसफॉर्मेशंस हमने पढ़ लिए हैं। अभी रो ट्रांसफॉर्मेशंस में हमने कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़े हैं? फर्स्ट काइंड ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन वाज यस आर आई इंटरचेंजेस टू आर जे, ठीक है ना। और सिमिलरली इन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस सी आई इंटरचेंजेस टू सी जे, मीन्स इंटरचेंज ऑफ एनी रोज और वी कैन से इंटरचेंज ऑफ एनी कॉलम्स, ठीक है। एग्जांपल्स भी हमने देखे हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन k into ri, and similarly for column transformations k into cj. Third transformation we have studied ri plus or minus k into rj. A scalar multiple of all elements of any row can be added or subtracted from the all corresponding elements of any other row. Similarly for column transformations also. So Ci plus or minus k into Cj, that is for column transformations. So basically we have seen all kinds of elementary transformations with their examples. One example we have already taken there. So this is the snapshot of what we have studied in elementary transformations. You have to remember in short also, okay. So make a record in your notes. Now let's see some examples there. Apply the given elementary transformations on each of the following matrices. जो मैट्रिक्स दिए हैं ना उसके साथ जो ट्रांसफॉर्मेशंस दिए हैं उसको उस मैट्रिक्स पे अप्लाई कीजिए। देखिए we have given the matrix A is the matrix given as 1 0 minus 1 3. So perform the transformation R1 interchanges to R2. क्या करना है? फर्स्ट और सेकेंड रो एक दूसरे की जगह पे इंटरचेंज करना है। सो -1 3, R2 जो है वो R1 की जगह पे लिख दिया, R1 जो है R2 की जगह पे लिख दिया, हमने दोनों रोज इंटरचेंज कर दिए, हो गया काम, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव अप्लाइड। सेकेंड, द मैट्रिक्स इज गिवन एज B is equals to the matrix 1 minus 1 3 2 5 4, and on this matrix which transformation we have to apply? We have to R1 changes to R1 minus R2. R1 चेंज करना है हमें R1 से R2 सब्सट्रैक्ट करके। देखिए हम सॉल्व करेंगे इसको। गिवन द मैट्रिक्स B, सॉरी हियर इज इक्विवेलेंस, ठीक है ना। गिवन द मैट्रिक्स B is equals to the matrix given as 1 minus 1 3 2 5 4, okay. So perform the transformation R1 interchanges to R1 minus R2. So B will be the matrix. How it comes? See, R1 minus R2, R1 से R2 सब्सट्रैक्ट करना है, चेंज किस में होगा? रो नंबर 1 में हो जाएगा, ठीक है। सो 1 minus 2, each element of R1 R2 will be subtracted from the corresponding element of R1. Each element of R2 will be subtracted from corresponding element of R1. R2 का हर एक एलिमेंट उसको corresponding जो R1 में एलिमेंट है उससे सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। So 1 minus 2 will be -1, -1 minus 5 that comes -6, 3 minus 4 comes -1. Change will be only in R1, so R2 will be as it is 2 5 4. So that is the new matrix we have founded out from the given transformations, okay. Third example, if A is the matrix 5 4 1 3. Third example, if A is the matrix 5 4
1 3. What we have to apply on A, that is C1 interchanges to C2, C1 interchanges to C2, and B is the matrix 3 1 4 5, 3 1 4 5, and on B we have to perform the transformation R1 interchanges to R2, and the question is given to you, what do you observe? What do you observe? चलिए, दो मैट्राइसेस हमें गिवन है, ए दिया हुआ है, उस पे ए ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, बी भी दिया हुआ है, बी पे ए ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, और हमें क्या मिलता है उसका इंटरप्रिटेशन बाद में लिखना है। चलिए हम शुरू करते हैं वन बाय वन। गिवन द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 5 4 1 3. सो लेट्स परफॉर्म द ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए. Which transformation we have to perform on A? C1 interchanges to C2. So A will be the matrix. Yes, how A comes there? C1 and C2, column number 1 and column number 2 are interchanged. So 4 5 3 1. That is the matrix A after applying that transformation. Now what about matrix B? Now matrix B is given as, yes, it is 3 1 4 5. So perform the transformation on B. Which transformation we have to perform? We have to perform R1 interchanges to R2 on B. See here, B के सामने ये ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ है ना, so R1 and R2 हमें इंटरचेंज करना है. So B is the matrix. Yes, how it comes? R1 and R2 दोनों रोज एक दूसरे की जगह पे इंटरचेंज कर देना है. 4 5 3 1. So this is the matrix B after performing the given elementary transformation. So what we observe there? What we observe? A and B are same. A and B are same. A is equals to B after applying transformations. जो transformations हमें given हैं उनको हम अगर अप्लाई कर देंगे तो A and B दोनों कैसे आएंगे? सेम आएंगे. ठीक है ना, दोनों के दोनों मैट्रिक्स सेम आ गए. 4 5 3 1 4 5 3 1. सो दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4. क्या है? ए मैट्रिक्स इज गिवन टू यू. ए इज गिवन एज 1 2 -1 0 1 3. उस पे ए ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है 2 into C2. बी इज द मैट्रिक्स 1 0 2 2 4 5. उस पे ए एप्लीकेशन अप्लाई करना है -3 into R1. और ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद जो मैट्रिसेस हमें मिलेंगे उनका एडिशन फाइंड करना है. फाइंड एडिशन ऑफ न्यू मैट्रिसेस. लेट्स सी वन बाय वन अगेन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, गिवन द मैट्रिक्स ए. मैट्रिक्स ए इज गिवन एज 1 2 -1 0 1 3. Okay, so perform the transformation on A. Which transformation? 2 into C2. So A is equals to, yes, sorry, equals to नहीं, इस तरीके से 2 into C2. C2 means column number 2 again. So 1 0 will be as it is. 2 into C2. 2 into 2 will be 4 and 2 into 1 will be 2. This -1 and 3 as it is. हमने क्या किया? कॉलम नंबर 2 के सभी एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. So 2 into 2 is 4. 2 into 2 is 4 and 2 into 1 is 2. Okay, this is the new matrix we have obtained from applying that transformation. Now B is the matrix given as, now B is the matrix. Yes, which matrix you have given? It is 1 0 2 2 4 5. And which transformation you have to perform there on B? Perform -3 into R1. -3 into R1. So B will be the matrix. Yes, how it comes there? R1 means रो नंबर 1 के सभी एलिमेंट्स को आपको -3 से मल्टीप्लाई करना है. So -3 into 1, it is -3. Okay, -3. 0 into -3,
देखिए -3 इंटू R1, R1 के सभी एलिमेंट्स को -3 से मल्टीप्लाई करना है. सो -3 इंटू 1 वी हैव रिटन -3, -3 इंटू 0 दैट कम्स 0, -3 into 2 it is -6, 2 4 5. This is the matrix B after applying that given elementary transformation. What we have to do after this? We have to find the addition of the new matrices. ये दोनों के addition हमें find करनी है. Therefore the addition of new matrices is, दोनों मैट्रिक्स की हम सम फाइंड करेंगे. क्या है पहला मैट्रिक्स हमारा 1 4 -1 0 2 3 प्लस, यस, सेकेंड मैट्रिक्स इज -3 0 -6 एंड सेकेंड रो इज 2 4 5 2 4 5. ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर टेकिंग द एडिशन ऑफ टू मैट्राइसेस, दो मैट्रिक्स की अगर हमें एडिशन लेनी हो तो पहली चीज़ दोनों का ऑर्डर सेम हो. यहाँ पे दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 नंबर ऑफ रोज 3 नंबर ऑफ कॉलम्स. Here also 2 number of rows, 3 number of columns. Order of both the matrices are same. What we do in addition or subtraction? We just add the elements at the corresponding positions of both the matrices. चलिए करते हैं एडिशन. 1 plus -3 means 1 minus 3 it is -2. 4 plus 0 it is 4. -1 plus -6 means -7. 0 plus 2 is 2. 2 plus 4 is 6 and 3 plus 5 that is 8. That is the addition of the new matrices we have found out by performing the given elementary transformation of matrices. Write down. हमारा next question, use suitable transformation on the matrix 1 2 3 4 to convert it into an upper triangular matrix. इस मैट्रिक्स को हमें upper triangular matrix में कन्वर्ट करना है. सबसे पहली चीज हमें पता हो what is mean by upper triangular matrix. Now if we see the matrix A is equals to Aij having elements ij, that is the square matrix. Okay, for the matrix to be upper triangular matrix, the matrix must be the square matrix. ठीक है. So इस मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे? इफ ए आई जे इट इज नॉन जीरो इफ आई इज लेस देन जे. सी हियर we are seeing the upper triangular matrix, we are studying the upper triangular matrix. If I is less than or equals to j, then aij is not 0 and aij is equals to 0 if I greater than j. देखिए I means row number and j means column number. That means the matrix is upper triangular if it is like this: a11, a12, a13, 0, a22, a23, 0, 0, a33. देखिए I less than or equals to j, aij 1 is equals to 1, 1 less than 2, 1 less than 3, 2 is equals to 2, 2 less than 3. सो सभी केसेस में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो j जो है कॉलम नंबर जो है वो रो नंबर से बड़ा है. हर एक एलिमेंट में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे कॉलम नंबर रो नंबर से बड़ा है, वो एलिमेंट्स नॉन जीरो है. ठीक है, मतलब डायगोनल के बिलो एलिमेंट्स जीरो है. ए आई जे इक्वल्स टू 0 इफ आई ग्रेटर देन जे. ये एलिमेंट कौन सा है? ये 2 1 पोजीशन का एलिमेंट है. आई ग्रेटर देन जे. ये 3 1 पोजीशन का एलिमेंट है तो भी वो 0 हो गया. आई ग्रेटर देन जे एंड दिस एलिमेंट इज ए 3 2 that is again 0 means I greater than j, that means elements below diagonal are 0, that matrix is upper triangular matrix. ये तो हो गया हमारा कंसेप्ट. क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का कंसेप्ट है ये. अभी जो मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2. सो लेट्स टेक द गिवन मैट्रिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन द मैट्रिक्स A is equals to the matrix 1 2 3 4. What we have to do? We have to convert this matrix in an upper triangular matrix. इसको हमने क्या करना है? Elements below diagonal we have to make at 0. Means हमें 3 को 0 करना है. देखिए अभी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमें तैयार करना है. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन गिवन नहीं है, हमें तैयार करना है. जब एलिमेंट्री
ट्रांसफॉर्मेशन हमें तैयार करना होता है तब हमें सोचना है थोड़ा सा। एक बहुत ही सीधी सादी और इजी टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूं कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बनाना है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसा तैयार करना है, बहुत सादा एक क्लू है, एक सीधी टेक्निक है, याद रखना है। सबसे पहले जिस रो को देखिए, मैट्रिक्स को अगर अपर ट्रायंगुलर करना है तो हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, जब लोअर ट्रायंगुलर करना हो तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज इफेक्टिव होता है। ठीक है, सो एक चीज तो तय कर लेनी है, अगर मैट्रिक्स को हमें अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है तो हमने 100% वहां पे रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। पहली चीज तो फिक्स हो गई, वहां पे हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। अभी रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन तैयार कैसे करेंगे, हमको किस एलिमेंट को चेंज करना है, एक चीज तो हमने कंफर्म कर ली है, यहां पे हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। ठीक है, अभी जिस एलिमेंट को हमें सबसे पहले चेंज करना है उसको पकड़ना है। हमें चेंज कौन से एलिमेंट को करना है, 3 को चेंज करना है। इसका लोकेशन कौन सा है भाई, कितने नंबर के रो में आता है ये 3, ये 3 आता है 2 नंबर के रो में। सो परफॉर्म, सबसे पहले हमें R2 चेंज करना है तो R2 पहले लिख लेने का है। ठीक है, अभी जब हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने हैं तो हम कॉलम के बारे में सोचेंगे। इस रो को हमें इस रो का यूज करके चेंज करना है, इस रो का यूज करके, मतलब एक रो को चेंज करने के लिए दूसरे रो को हमें यूज करना है। सो ये कौन से रो में आ गया, ये 1, ये R1 में आ गया। सही बात है, उसके कॉलम में कौन सा एलिमेंट है ना, उसके बारे में सोचना है। दो वी आर यूजिंग द रो ट्रांसफॉर्मेशंस, वी हैव टू थिंक अबाउट द एलिमेंट्स इन द कॉलम ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। इस 3, दो इट इज लाइज इन R2, वी हैव टू यूज टू चेंज दिस 3, वी हैव टू यूज R1, नो डाउट। बट R1 में से कौन सा एलिमेंट, उसके कॉलम में जो है वो एलिमेंट पकड़ना है। सो इसको चेंज करने के लिए, इसको 0 करने के लिए हमें इस 1 का यूज करना है। उसके ऊपर नीचे जो है ना उसके बारे में सोचना है। ठीक है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन जब हम यूज कर रहे हैं, जो एलिमेंट हमें चेंज करना है उसका रो नंबर लिख लेने का है। ये एलिमेंट रो नंबर 2 में था, जिसका यूज करना है उसके ऊपर नीचे कौन है उसका रो नंबर लिख लेना। इस 1 का यूज हम करने वाले हैं, उसका रो नंबर हमने यहां पे लिख लिया। रो नंबर लिखने के बाद देखिए 3 को 0 करना है हमें, बिकॉज इट इज we have to convert this matrix into upper triangular matrix। मतलब हमें क्या करना है, हमें ये एलिमेंट्स बिलो डायगोनल 0 करना है। इसका मतलब इस 3 को हमें 0 बना देना है। अभी 3 को 0 बनाने के लिए हमें 3 में से 3 माइनस करना पड़ेगा। ये तो बात हमें समेशन आता है ना, हम ऐड सब्सट्रैक्ट तो कर सकते हैं। सो 3 को 0 करने के लिए कौन सा एलिमेंट उसमें से, अभी देखिए 3 को किसी नंबर से डिवाइड करके तो 0 नहीं कर सकते, 3 को मल्टीप्लाई तो नहीं करना है। अगर 3 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा का पूरा रो 0 हो जाएगा। सो वो ट्रांसफॉर्मेशन फॉल्स हो जाएगा हमारा। इसको 0 नहीं करना है हमें ओनली 3 को 0 करना है। सो अभी अगर कुछ नंबर ऐड और सब्सट्रैक्ट करके 3 को 0 करना होगा तो हमें उतना तो कॉमन सेंस की बात है, 3 को 0 करने के लिए 3 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सही बात है, 3 को 0 करने के लिए 3 में से 3 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सही बात है, सो 3 में से अगर 3 सब्सट्रैक्ट करना है, सो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब यहां पे 3 इंटू R1 आ जाएगा और उसका क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। मतलब जो चेंज करना है वो सबसे पहले लिख लिया, जिसका यूज करना है वो उसके बाद लिख लिया, और 3 को 0 करने के लिए उसको -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज यहां पे 1 है। सो -3 इंटू R1, ये तैयार हो गया ना हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। R2 चेंजेस विथ R2 -3 इंटू R1। और इसको तो हमने पढ़ा है भाई पहले भी, अभी हमने देखा था एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस में R2 -3 R1 कैसे परफॉर्म करना है। चलिए कर देते हैं परफॉर्म। A इज इक्विवेलेंट विथ, यस दिस R2 इज गोइंग टू चेंज, सो R1 विल बी एज इट इज। R2 -3 इंटू R1, R2 का फर्स्ट एलिमेंट है 3, -3 इंटू R1 का एलिमेंट है 1, 3 इंटू 1 इज 3, सो 3 - 3 क्या हो गया, 0 हो गया। हमने ट्रांसफॉर्मेशन हमारे बलबूते पे बनाया है, सोच के बनाया उसको।
जिसको चेंज करना है वो पहले लिख लिया था, जिसका यूज करके चेंज करना है उसको बाद में लिख लिया था। फिर हमने देखा है कौन सा एलिमेंट हमें ऐड करना है या फिर सबट्रैक्ट करना है। यहाँ पे 1 था तो 3 को 0 करने के लिए हमें -3 चाहिए, तो 1 को हमने -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इतनी सीधी सीधी बात है ट्रांसफॉर्मेशन बनाने के लिए। चलिए R2 - 3 R1, 3 - 3 into 1 that goes 0, so 0 we have written here. Now next element of R2 will be 4, -3 into R1 का एलिमेंट कौन सा है 2, so 4 - 6 is -2, so here comes -2 and that is the matrix which is an upper triangular matrix as per our requirement. समझ में आ रही है बात? चलिए भाई नोट कर लीजिए, है तो बहुत इजी लेकिन थोड़ा सोचने की जरूरत है, ठीक है, राइट डाउन। चलिए एक और एग्जांपल हम देखेंगे। कन्वर्ट अ मैट्रिक्स 1 - 1 2 3 into an, now directly we have to convert it into an identity matrix by using suitable row transformations। अभी उसको डायरेक्टली हमें क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। चलिए सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी किस तरीके से जाना है, क्या यूज़ करना है, कौन सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे उसको तो हम देखेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको याद रखनी है। जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे A11, A12, A21, A22, सपोज ये 2x2 मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स करने के लिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब कौन सा होता है 1 0 0 1 होता है, ठीक है ना। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स करने के लिए सबसे पहली स्टेज हमें क्या करना है, कन्वर्ट फर्स्ट एलिमेंट, उसको क्या करना है 1 करना है। इसको लीडिंग एलिमेंट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे लीडिंग एलिमेंट। उसको भी कुछ मेथड है, देखिए सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आपको रो ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करके करना है तो टोटल सभी ट्रांसफॉर्मेशंस हमारे रो ट्रांसफॉर्मेशंस चाहिए। अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करना है तो सभी के सभी ट्रांसफॉर्मेशंस हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस चाहिए। लेकिन पहली चीज सबसे पहले लीडिंग एलिमेंट को 1 कर लेने का है। उसके बाद हम ये क्या देख रहे हैं, बाय रो ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है ना। क्या करेंगे हम, एक स्टेज आपके पास लिख के देता हूं मैं, इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशंस, यहाँ पे बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। सो सबसे पहली स्टेज क्या करेंगे, A11 को 1 करेंगे। यहाँ पे भी पहली स्टेज क्या आएगी, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके भी A11 को क्या करेंगे 1 करेंगे। यूजिंग सम स्केलर मल्टीप्लीकेशन और इंटरचेंज ऑफ एनी रोज और इंटरचेंज ऑफ एनी 2 कॉलम्स, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो इंटरचेंज ऑफ एनी 2 कॉलम्स, उसको 1 कर लेंगे। स्टेप नंबर सेकेंड में क्या करेंगे, उसी 1 का यूज करके उसके बिलो जो एलिमेंट है, उसके नीचे जो है उसके कॉलम में, कौन सा है उसके कॉलम में A21 है, उसको 0 करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस A12 उसको क्या कर देंगे 0 कर देंगे। देखिए मैं आपको कंपैरेटिवली रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से उसको आइडेंटिटी में कैसे लाना है वो बता रहा हूं, ठीक है। थर्ड स्टेज में क्या करेंगे, थर्ड स्टेज में हम उसका सेकेंड डायगोनल एलिमेंट 1 करेंगे। ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो फिर इसको 1 कर देंगे बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशंस। ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो फिर इसको 1 कर देंगे, मतलब ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके कर रहे हैं हम, ठीक है ना। थर्ड स्टेज में क्या करेंगे, इस यहाँ पे भी उसको 1 करेंगे सेकेंड डायगोनल एलिमेंट के। एंड फाइनल स्टेज विल बी टू कन्वर्ट दैट एलिमेंट A12 उसके कॉलम में जो आता है उसको 0 करेंगे, और यहाँ पे उसके रो में जो आएगा उसको 0 करेंगे, ठीक है। यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशंस एंड यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। मेथड कैसा फॉलो करना है आइडेंटिटी करने के लिए ये हमें याद रखना है, ठीक है। चलिए भाई अभी ये रूल का यूज करेंगे और आगे चलेंगे। सो सबसे पहली बात हम यहाँ पे कौन से ट्रांसफॉर्मेशंस यूज कर रहे हैं, सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करना है। सो पहला एलिमेंट 1 करना है तो ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, परफॉर्म, इसको ऑलरेडी 1 करना होता है लेकिन दिया हुआ है 1 ही है। सो व्हाइल यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशंस हमें उसके ऊपर नीचे कौन है उसको 0 करना है। अभी उसके नीचे 2 है तो वो कौन से रो में आता है, रो नंबर 2। सो सबसे पहले हमें रो नंबर 2 चेंज करना है। सो रो नंबर 2 उसको 0 करने के लिए हमें इसी 1 का यूज करना है, वो आ गया रो नंबर 1 में। और
2 को 0 करने के लिए -2 चाहिए, सो 1 को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो R2 - 2 R1 विल बी द ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव टू अप्लाई ऑन दिस मैट्रिक्स. सो A विल बी द मैट्रिक्स. चेंज कौन सा रो होगा? ओनली रो नंबर 2 चेंज होगा. R2 - 2 इंटू R1. R2 का फर्स्ट एलिमेंट है 2 -2 इंटू R1 का एलिमेंट है 1. 2 - 2 दैट कम्स 0 हियर. R2 का सेकेंड एलिमेंट है 3 -2 इंटू R1. 3 के लिए R1 का एलिमेंट है -1. सो 3 - +2 that comes 5. So it is 5. It is 5. Now this first column is cleared 1 0. हमारा टारगेट यहाँ पे पूरा हो गया. चलिए नेक्स्ट थर्ड स्टेज क्या थी हमारी? सेकेंड डायगोनल एलिमेंट. मतलब हमें एक चीज तो याद रखनी है, डायगोनल एलिमेंट्स को हमें टारगेट करते चलना है. डायगोनल एलिमेंट्स को हमें टारगेट करते चलना है, इसको 1 करना है. और एक बात अगर सोचेंगे, ये स्क्वायर मैट्रिक्स में जो सबसे लास्ट डायगोनल एलिमेंट होता है, याद रखना है आपको. आप चाहे रो ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करो, चाहे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करो, लेकिन जो उस मैट्रिक्स का लास्ट डायगोनल एलिमेंट होता है उसको 1 करने के लिए 100% हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन का यूज करना होता है. देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, आपका रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो या तो फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो, ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मेट कौन सा भी हो, लास्ट डायगोनल एलिमेंट को 1 करने के लिए हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही यूज करना पड़ता है. ठीक है, फिर से बार बार सुनिए, लास्ट डायगोनल एलिमेंट को 1 करने के लिए हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही यूज करना है. सो कौन से रो में है ये 5? इट इज इन R2 इंटू 5 को 1 करने के लिए 1/5 बिकॉज वी आर अप्लाइंग द स्केलर मल्टीप्लिकेशन. इसी ट्रांसफॉर्मेशंस को हम ऐसा भी कर सकते हैं, R2 चेंजेस टू 1/5 इंटू R2. सो A will be the matrix. Yes, R2 is going to change. So 1 - 1, R1 will be as it is. 0 into 1/5, 0. 5 into 1/5, that is 1. Okay, it is converted to 1 now. Now what we have to do to make it as this matrix as identity matrix, we have to convert this -1 to 0. In which row that -1 lies? That lies in R1. So we have to change R1. How we have to change? We have to write R1 first, and to make this 1 as 0 we have to use this one. This one lies in R2, so this is in R2. We have to convert R1 and using R2. So -1 को 0 करने के लिए +1, so -1 + 1 will be directly 0. So just we have to add R1 and R2. So A is the matrix 1 plus 0, R1 plus R2, 1 plus 0 1, -1 plus 1 0 and 0 1. That comes the matrix which is identity matrix of order 2. That is our answer. सबसे पहली बात, सॉल्व तो आप कर लेंगे भाई, कोई उसमें टेंशन नहीं है, सीधी सीधी बात है. लेकिन एक बार हमने अगर चेंज कर दिया, अभी यहाँ पे 1 कर दिया, तो वो 1 बाद के जो ट्रांसफॉर्मेशंस आप यूज करने वाले हो उससे चेंज नहीं होना चाहिए. अभी इसको 0 कर दिया था हमने, तो ये 0 बाद में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई करेंगे वो 0 ही रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होने देना है, उसको चेंज नहीं करना है. जो हमने एक बार चेंज कर दिया वो फिक्स हो जाएगा, वो बाद में कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन हमने अप्लाई किए तो वो चेंज नहीं होना चाहिए. इतनी बात हमें याद रखनी है. सो हमने ये मैट्रिक्स A को यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया. इतने सारे एग्जांपल्स हैं, आप वहाँ पे और भी एक्सरसाइज में एग्जांपल्स हमारे हैं, लेकिन सबका फॉर्मेट वही है, तो आप 1-2 एग्जांपल्स घर पे सॉल्व कर सकते हैं, कोई बात नहीं. मैं आशा करूँगा, आई होप you all have studied elementary row transformations easily. You have to remember the method to create a row. देखिए जब हमें दिया होता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दो भाई, तो हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन जब हमें बनाना है, ट्रांसफॉर्मेशन तैयार करना है, तो वो टेक्निक हमें याद करनी है. वो कैसे है मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप वो देखिए, सुनिए, बार बार सुनिए, so that your idea will be more clear to create the transformations and apply the transformations to each and every matrix in any kind, either row or column. Okay, so you have to take a record of this example also in your notebooks. Remaining examples you have to solve at home.
and in the next lecture we will be directly continuing with inverse of a square matrix, which is the key part of this chapter. Okay, so all the best to all of you for elementary transformations. Thank you very much.